Acha, while we are on the subject, I actually tried to reset my system because the system was very slow, and I installed JDK 20 then because it was deleted. So just before the class, I was trying to fix up the thing so that the class should go smoothly. So I tried to open the Eclipse. Eclipse was not able to find the previous JDK version that was 18 installed on my machine. So I had to make a few changes over there. So just want to let you know so that if you come across such a situation, then you are able to fix it up. So my installation of Eclipse is in user folder. SHI is my username. Within that you will see the Eclipse, and these are the different versions of Eclipse that I have installed over time. So this was the most recent version of Eclipse which was giving the error after the installation of JDK 20 version. All the earlier versions were deleted because I reset my system, right? So here, what I had to do is I had instead of even after setting the path in the Java home, Eclipse was not picking up that particular path. So what I had to do is I had to go to this configurations file. There is a configuration file you see in the Eclipse folder, and if you just try to edit it, just right click and open with, say for example, WordPad. You will see. Here you will see this is the actually path to the bin folder. This is given in this configuration file as well. So they have made this information static in the Eclipse itself. So next time when you change your JDK, then probably you will need to just replace this from the installation folder of Java till the bin folder. That means the path of the Java home, path of the Java home, not Java home. ठीक है तो एक तो चेंजेस यहाँ करा मैंने. Then what happened is, as soon as I opened the Eclipse, I start seeing all these errors in each and every project. So this was the project we were working on in the last class, overriding demo. So how did it? The error got removed. I will show you how. For example, let me show you. These are the classes in one of the back, project which is showing error. In fact, every project will start showing the error. So that will show a lot of errors. It will say sometimes that system class is missing. So if such kind of error are there, then you huh? AC की remote AC line ही है मैं आ चुकी है. If you see the error like system class is missing or something like this, which are the part of the JDK installation, then know that there is some problem with the fetching of the JRE library. So in that case, what you have to do is you can simply just right click on the project name, go to the properties, and then you will see Java build path, right? In Java build path, you will see libraries tab, okay? And here you can see there is a cross for GRE system libraries, which is still showing for 18 because I had reset my system, so I don't have this 18. Then I had to reinstall this JDK, which was the latest version was JDK 20. I have reinstalled it 20.0 dot something. So I will just remove this older version of JRE, sorry, and then I will try to add library. Should allow me to add library. Okay, I will have to click model path and then add library. Okay, don't go for external jars or external class folder. No, just go for the library, add library. When you create a new project, right, then in Eclipse, then you will see there is something called as a module path is created, right? Actually the setting goes over there itself. So there is an option when you right click on module path and add library, then you will see GRE system library. Okay, as soon as you click it, it will automatically pick up the default library because we have made changes in the Eclipse configuration file also. Just go for it, and then you can see the error is gone, right? And as soon as this is done, you say apply and close. You see this should go. This exclamation red mark should go. Once that is gone, that means your project does not have any error. These errors are not because your code had a problem. These errors was because it was not able to fetch the GRE appropriate library. ठीक है. तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो उसको हैंडल इस तरह कर लेंगे आप लोग. अदरवाइज यू हैव टू ब्रिंग द लैपटॉप एंड वी विल हैव टू सी. ठीक है. So this was the code that we were seeing in the last class. We had created a point class,
We have in the last class we have also seen the overloading, right? We have seen overloading, and then we have also tried overloaded methods with the var arg also, right? Then we have seen the advanced for loop and the normal for loop, both types of for loops. What else? And then we started with this point class. We started with the definition of point in terms of composition. That means we define the class as point has two coordinates, the x coordinate and the y coordinate. So the relationship that we identify is has a relationship. Point has a और has two coordinates, right? ठीक है. तो यहाँ पे जब हैज ए आ रहा है इसका मतलब एक क्लास के अंदर दूसरी चीजें जो हैज है वो क्या है, वो कंपोजिट्स हैं. ठीक है. एंड द क्लास पॉइंट इटसेल्फ इज कंपोज्ड. The point class is composed of the composites. And what are the composites? What we in fact state in the sentence like the point has two points or two coordinates. So these two coordinates are the composites. ठीक है. तो कई बार ऐसा होता है कि आपको रिलेशनशिप फाइंड करने में अगर दिक्कत हो तो स्टेटमेंट से बोलने की कोशिश करें. ठीक है. जब आप स्टेटमेंट से बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ब खुद वो नेचुरल आ जाएगा कि क्या होना चाहिए, कंपोजिशन होना चाहिए या इनहेरिटेंस होना चाहिए. ठीक है. तो इनहेरिटेंस अभी तक हमने देखा नहीं है, बट स्टिल those of you who are familiar with inheritance, that's for them. Otherwise, just ignore as of now. Has a relationship is something that you are familiar with. So the point has two coordinates, x and y, that we have seen in the last class. Then what other thing that we have seen is, say for example, let me delete these two things. What you have seen, you are seeing right now. These were the constructors. Okay. All we have got is the point class, and we started with the object oriented way. That means we identify the point class as a class, as an entity. Okay, fine. Then we identify that what are the data that belongs to point, which are the coordinates x and y. Then we start thinking about the method. And what are the methods? The getter and the setter methods. As well as we defined a method print point to print the x and the y values of the x and y coordinates. Right? And in fact, after that, we start thinking about the coordination, that is test point class, which has got the main method, which will start the execution of the program. So we went exactly in the reverse order that we used to do in a procedural language like C, where we start with a single file where we have got the main method, so many functions, methods, and then we define functions. And as soon as we start defining the function, then we start think of the local and the global variables and the that means the data, and the data comes to the picture at the last. So that was the natural way of working in a procedural language. But in object oriented paradigm, what we do is we start thinking in terms of objects. Then we think at the next level, we think about the data of the objects or the fields. Then we think what are the methods that we are going to apply on those fields, those specific fields. Together, these fields and the methods that will be applied to these fields are put inside a class, and this is what we call as encapsulation. इसी को कह रहे हैं ना, आप डाटा को और उन पे ऑपरेशंस जो हो रहे हैं यानी मेथड्स को दोनों को एक जगह पैकेज कर दे रहे हैं, इनकैप्सुलेट कर दे रहे हैं. ठीक है, सिंपल एज दैट, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है. ध्यान ये रखना है कि जो मेथड्स हैं आपके, ये सारे मेथड्स उन्हीं डाटा पे अप्लाई हो रहे हैं जो इस क्लास के अंदर डिफाइंड है. ठीक है. प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता था, अब एक लंबी चौड़ी फाइल आपने बना लिया, बहुत सारे फंक्शन बना लिए, सारे फंक्शन हो सकता है ग्लोबल वैल्यू वेरिएबल से इंटरेक्ट करते हो, तो उन फंक्शन में आपस में कपलिंग बहुत ज्यादा होती है. कपलिंग मतलब एक तरह का अटैचमेंट. ठीक है. अगर ग्लोबल वेरिएबल में कोई अगर चेंजेस होता है तो मल्टीपल फंक्शंस में अफेक्ट करेगा, या एक फंक्शन के बिहेवियर में चेंज होता है जो किसी ग्लोबल वेरिएबल पे अफेक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, दूसरे फंक्शन के बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा. दिस इज कॉल्ड एज कपलिंग. ठीक है. तो हियर वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कपलिंग. In fact, we strive to build a code in any language where we will try to have the least possible coupling. ठीक है. At any level of modularity. When we say class as a module, then the two class should be decoupled.
totally separated. When we talk about the package level modularity, the two packages should have entirely different things, different aspects, right? When we think about the method as a modular element, then the two methods should be meant for two different purposes. ठीक है, एक मेथड में एक से ज्यादा पर्पस नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने एक विड्रॉ मेथड लिखा, राइट? तो विड्रॉ मेथड में आप क्या करेंगे? अच्छा, पहले आप चेक करेंगे यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे, आप ये कह रहे हैं यूजर को आप ऑथेंटिकेट करेंगे, राइट? विड्रॉ मेथड के अंदर माइनस कर देंगे. पहले कंडीशन चेक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो विड्रॉ करना चाह रहा है वो करंट अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा हो, वो भी आप कंडीशन चेक करेंगे. फिर कुछ डिफिकल्टी होगी तो अकॉर्डिंगली आप एरर शो करेंगे. फिर क्या करेंगे, अगर विड्रॉ हो गया है या कोई प्रॉब्लम आई है तो हो सकता है आप फाइल सिस्टम में या डाटाबेस में लॉक करें, उसको ईमेल मैसेज भेजें, उसको एसएमएस भेजें, इतने सारे काम होंगे ना. तो आपने कहाँ से शुरू करा? आपने कहानी शुरू करी इन्होंने कि विड्रॉ मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को, कि भाई यूजर का जो यूजर नेम उसने इंटर करा है या कार्ड अगर इंसर्ट करा है एटीएम में, तो एटीएम कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है और पिन जो इंटर करा है वो पिन उसी की है कि नहीं है. डाटाबेस में जाकर के वो इन्फॉर्मेशन लाएंगे, फेच करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ट्रू होगी तब अगले स्टेप में आएंगे, चेक करेंगे, उसका अकाउंट बैलेंस पे आएंगे, राइट? फिर अकाउंट बैलेंस सही होगा तो डिलीट करेंगे अकाउंट बैलेंस को. फिर उसके बाद फिर लॉगिंग वगैरह प्रोसेस पे जाएंगे. इट कुड बी अ वेरी लॉन्ग मेथड, राइट? एंड यू कैन सी दैट इट हैज अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. So this is not a modular function. This is not a modular function. You will write separate functions separately. Authenticate function, it will go at one place. ठीक है? Check for balance. Check for whether the account is in running condition or a dormant. Say a dormant account or not. Dormant means if you keep the account unoperated for a year, say for example, then they just make it dormant. That unless until you submit your KYC and reactivate it, you cannot operate on it, right? So all these operations, they have different concerns. ठीक है, you should not mix them into one function. ठीक है, अदरवाइज क्या होगी कि आपकी मॉड्युलरिटी नहीं रहेगी फंक्शन में. ठीक है, फाइन. A function will have more than one responsibilities. That is not desired. When a function have one responsibility, then we say that function is highly cohesive function. कपलिंग कोहेजन दो चीज पढ़ी होगी ना आपने. कपलिंग मतलब दो फंक्शंस या दो मॉड्यूल्स के बीच में आपस में कैसी बॉन्डिंग है. अगर वो टाइट बाउंडिंग है, बैड थिंग. ठीक है. कोहेजन मतलब एक फंक्शन, एक क्लास, एक पैकेज जिसकी भी हम बात करें, वो एक चीज को डील कर रहा हो. ठीक है. तो अब ये फंक्शन को आपको क्या करेंगे, इसको आपको अलग अलग छोटे छोटे कई सारे फंक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा. एंड वन फंक्शन इज गोइंग टू मेक अ कॉल टू ऑल दिस. कपलिंग नहीं हो रही है ना. नहीं, कपलिंग तब होती है जब एक फंक्शन के कोड को अगर हम चेंज कर दें इन फ्यूचर, तो दूसरे फंक्शन के बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ जाए. आपने रुको, जैसे मैंने कहा ऑथेंटिकेट फंक्शन हमने अपने फंक्शन में ऑथेंटिकेट फंक्शन एड्रेस लिख दिया, जो 10 लाइन का फंक्शन हो सकता है, डाटाबेस से फेच करेगा, जो भी करेगा, है ना. फाइन. हमने यहाँ सिर्फ ऑथेंटिकेट का कॉल लगाया जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने को प्रॉमिस कर रहा है. ठीक है. अब चाहे उस फंक्शन को ऑथेंटिकेट फंक्शन के पूरी लॉजिक को चेंज कर दे, वो रिटर्न तो ट्रू या फॉल्स ही करेगा ना. तो हमारे इस फंक्शन के अंदर असर कहाँ पड़ा? उस फंक्शन के बिहेवियर पे चेंज हुआ. तो कह तो रहा हूँ, अब पहले आप एक एल्गोरिथम को आप एक ही फंक्शन के अंदर लिख रहे थे, उसको मैं कह रहा था नॉन कोहेसिव है या नॉन मॉड्यूलर फंक्शन है. अब मैं क्या कह रहा हूँ, हर सेपरेट फंक्शनैलिटी को आप अलग अलग फंक्शन के अंदर आप डिफाइन कर रहे हैं, राइट? अब क्या हो रहा है कि आप सिर्फ उनको कलेक्टिवली फंक्शन कॉल के थ्रू एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से आप चल रहे हैं, जैसे एक सीक्वेंशियल स्टेप चलता है. किसी भी स्टेप पे फेल होने पे वहां पे तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, राइट? तो अगर किसी भी फंक्शन का अगर कोई भी एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, यानी हाउ दे
दे डू दैट पर्टिकुलर थिंग, वो चीज़ अगर चेंज हो रही है तो उसका जो जो फर्स्ट लाइन है, प्रोटोटाइप है, वो तो जो रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है, जैसे बूलियन ने उसने प्रॉमिस किया ऑथेंटिकेटेड केस में, तो वो तो तब भी बूलियन ही रहेगा ना, चाहे हम उसका पूरा एंटायर प्रोसेस ही चेंज कर दें, है ना। अब अगर मान लो कि मतलब वो कार्ड है जो जिसमें होता है टच वाला होता है, अब उसमें क्या होता है, उसमें तो पेन कार्ड में नहीं चाहिए, हाँ चिप चाहिए, 2,500 की लिमिट है, आप नहीं चाहिए आपको, उसका ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस चेंज हो गया, ठीक है। नाउ दैट ऑथेंटिकेट मेथड मे बी रिप्लेस बाय अनदर ऑथेंटिकेट मेथड एट द रन टाइम। अच्छा, रन टाइम पे कैसे होगा वो एक अलग चीज कहानी है, उसके हम बाद में आएंगे, लेकिन वो भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। तो आपका जो विड्रॉ मेथड है उसने सिर्फ उस फंक्शन के नाम को कॉल यूज किया है ना, उसकी पहली लाइन को यूज किया, जिसको सिग्नेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेथड सिग्नेचर। तो अगर मेथड सिग्नेचर चेंज नहीं हो रही, मेथड सिग्नेचर इज द प्रॉमिस, अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो उसके बिहेवियर के चेंज होने से आपके इस मेथड पे अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब दोनों मेथड डिकपल्ड है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी डन। ठीक है, बात समझ आ रही है। थोड़ा सा हम लोग देखो, बिकॉज यू आर अ सीनियर बैच, हम लोग थोड़ा सा निश्चित चीज़ों की तरफ भी जाएंगे, और आप देखेंगे कि आप इंटरव्यू में जब जा रहे हैं, बेसिक आपको लैंग्वेज तो भाई कोई भी पढ़ा देगा, आपको यूट्यूब वीडियो लेक्चर लेके पढ़ा दो, टीचर की जरूरत क्या है आपको, ठीक है, किसी ज्वाइन कर लो कोई कोर्स, वहाँ भी करा देंगे वो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको डेवलपर बता पाएगा, और इसकी अहमियत तब होगी जब आप इंटरव्यू में इन चीज़ों को, अपने पॉइंट को थोड़ा भी अगर रख पाए ना, तो सामने वाला जो डेवलपर होगा, अगर उनमें कोई भी डेवलपर है, वो सेंस कर लेगा कि आपके पास सेंस ऑफ डेवलपमेंट है, यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कैसी चीज़ें होती हैं, अच्छी क्वालिटी कोड कैसे लिखना है, ठीक है, दैट विल मैटर अल्टीमेटली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, although this is not about Java, this is about any programming languages that you work on, or any technology for that matter. You have to make sure that the coupling is least, ठीक है, low coupling, and you have to make sure that the cohesion is high, and the cohesion means high modularity, ठीक है। इवन सी फॉर द मॉड्यूलर लैंग्वेज, क्योंकि फंक्शन लेवल पे उसने मॉड्यूलरिटी डिफाइन कर रखी है, हाई कोहिजन, कोहिजन 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 डिजायर्ड होता है, ठीक है, ओके फाइन। अभी देखो इस कोड को देखो, मैंने इससे कंस्ट्रक्टर हटा दिया है, अभी मैं डिलीट किया है, पहले लिख रखा था पिछली क्लास में मैंने, लास्ट क्लास का वीडियो देखेंगे तो इसमें 2 कंस्ट्रक्टर आपको दिखेगा, मैंने हटा दिया है। अभी आप जानते हैं कि आईडी बैकग्राउंड में कंपाइल करता जाता है कोड को, राइट। अब ये कंपाइल कर रहा है, डॉट क्लास फाइल बन गई होगी इसकी, तो जो डॉट क्लास फाइल बन गई है, क्या उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ तो कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम टेस्ट पॉइंट क्लास के अंदर चले जाएं, देखो इसमें 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल टू के डिक्लेरेशन है, राइट साइड क्या है, इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर which takes 2 parameter, and now we do not have a constructor that takes 2 parameters, so this line is not working, right, it's giving me a compilation error. What is the compilation error? The constructor point that takes int, that means 2 parameter of type integer, is undefined, right. Of course there is no constructor that takes 2 integer parameter, we have deleted it, right. अगर इसको हम ऐसे कर दें तो क्या हो गया, कोड कंपाइल होगा, because we have got a default constructor, and that default constructor is by default is a no or constructor that doesn't take an argument, here we are not passing any argument, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, create a new object by calling a no or constructor, and in fact this no or constructor is not something which we have written, it's something which has been inserted by the compiler because of the absence of a constructor by default, and that is why it, even though it happens to be a no or constructor, it will be called as a default constructor, right. Now then we have seen that as soon as control Z, as soon as if we just insert a constructor that takes any parameter, this is a to or constructor, for example, if we have written a constructor on our own, then what happens, this existing code starts giving me a problem, because then the compiler, when it sees that you have written a constructor, it will assume that you have taken the charge, and now because you have taken the charge in the control,
then it's not going to write any default constructor for you, right? So it will expect a constructor that takes two parameters, for example 2 comma 3, right? Because this is what you have written, and default constructor has not been created. This is true for C++ also, this is true for C# also. Okay? This constructor which was earlier working, this no constructor which was earlier working because of the default constructor is no longer valid now. If we want this to work, what we have to do is we have to create that no constructor manually. ठीक है, अब ये नो कंस्ट्रक्टर है, ये दोनों पॉइंट को 0 0 पे इनिशियलाइज कर रहा है. जब हम इसको मैनुअली पॉइंट बना देंगे देन दिस कोड इज फाइन. ठीक है, सही है बात. दिस part says create a new object by calling a nowhere constructor. This part says create a new object by calling a toWhere constructor that takes two integer parameters. Right? आप कंट्रोल दबाओ, इस पे माउस ले आओ, इस पे माउस आएगा, क्लिक कर दो, ये आपको उसी कंस्ट्रक्टर पे ले जाएगा. देखो दोनों कंस्ट्रक्टर के दो पैरामीटर है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, राइट? सो दिस इज अ टूअर. देख लो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं. No, make a correction here now. Don't call it a default constructor. This is a nowhere constructor, but not a default constructor. Default तभी होगा जब कंपाइलर अपने आप इंसर्ट कर रहा है एब्सेंस में. दिक्कत नहीं है. हम चाहते हैं आसानी कि दोनों चीजें, हम मान लो हम कोई पॉइंट को बाय डिफॉल्ट 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम इनिशियलाइज करना चाहते हैं. नो आर कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की जगह नो आर कंस्ट्रक्टर में शॉर्ट में कह रहा हूँ. ठीक है, लिख देता हूँ मैं. दिस इज अ टू आर कंस्ट्रक्टर, टू आर्ग कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग CON होती है ना. कंस्ट्रक्टर, this is again a constructor which is a no arg or zero argument constructor. ठीक है, but not a default constructor. We won't call it a default constructor. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको नजर ही नहीं आएगा कोड में, अपने जावा कोड में. वो सीधे डॉट क्लास फाइल के अंदर ही इंसर्ट होगी. वो भले ही वो ऐसा दिखे, ये चीज भी नहीं रहेगी उसमें, एम्प्टी दिखेगा आपको. इनफैक्ट नो और का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऐसा कुछ होगा. ठीक है, ऐसा कुछ होगा जो कंपाइलर इंसर्ट करेगा. ठीक है, अगर आपने लिख दिया है तो फिर वो डिफॉल्ट नहीं रह गया, फिर वो आपका बनाया हुआ अपना कस्टम कंस्ट्रक्टर है, भले ही वो नो आर्ग ही क्यों ना हो. ठीक है, तो ये पॉइंट टेक्निकली क्लियर हो गई, राइट? फाइन. So what is the purpose of constructor? To initialize the state of the object. State word आप यूज कर रहे हैं, and the state keeps on changing. For example, when you have passed 2 and 3, the state of x and y coordinate is 2 and 3, but when you set them to 5 and 7, the state changes. है ना? इसीलिए इस स्टेट वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं, बिकॉज एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम द वैल्यू में चेंज. ठीक है, एंड दैट इज हाउ अ वेरिएबल इज डिफाइंड. इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. करेक्ट? फाइन, ओके. अच्छा, अभी तक हमने जो बात करी, ये क्या करी, एक पॉइंट की बात की, और जब भी हम पॉइंट की बात बाय डिफॉल्ट करते हैं तो एक 2 डायमेंशनल पॉइंट हमारे दिमाग में आता है. 1 डायमेंशनल पॉइंट तो नहीं हो सकता. ठीक है, मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि दूसरा कोऑर्डिनेट उसका 0 है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट मौजूद है, यानी एक्स वाई अगर डिफाइंड है, तो वो 2 डायमेंशनल पॉइंट ही है, भले वो किसी एक एक्सिस पे आप ले ले, दूसरे एक्सिस की कोऑर्डिनेट को 0 डिफाइन करके है, वो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ 3D पॉइंट, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, राइट? जब हमने 2D पॉइंट बनाया है तो 2 कोऑर्डिनेट तो हमने उसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है. अब अगर हमें 3D पॉइंट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, x y z 3 चीज लेंगे. तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए?
कि हम इसको राइट क्लिक करें, न्यू क्लास बनाएं, एंड देन लेट्स से द नेम ऑफ द क्लास इज पॉइंट 3D. ठीक है, आई डू नॉट नीड अ मेन मेथड इनसाइड इट बिकॉज टेस्ट के अंदर मेन मेथड एक जगह काफ़ी है. इसके अंदर हम कहें भाई इंट एक्स एक हो गया कोऑर्डिनेट. वैसे हम क्लास सर पॉइंट के नाम से भी बना सकते पॉइंट हमने 2D बनाया है. हैं, फिर से वही क्लास अगर बना के 3 पैरामीटर्स दे देते हैं नहीं, एक स्कोप में दो चीज सेम नाम की नहीं हो सकती ना, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती ना. एक एक मेथड के अंदर दो वेरिएबल आप दो क्लास बनाती दो मेथड बनाए थे आपने, एक नो आर्गुमेंट और कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर बनाया, एक नो आर्गुमेंट बनाया था और एक टू आर्गुमेंट बनाया था. तो उसी क्लास में हम एक थ्री आर्गुमेंट भी तो बना सकते थे. नहीं, हम बना सकते थे, लेकिन उस कंडीशन में फिर क्या हमें करना पड़ता, इस क्लास को हमें मॉडिफाई करना पड़ता ना. यहाँ पे हमें z यहाँ पे देना पड़ता ना. maybe that I have an application which sometimes shows a two-dimensional graph and sometime I need to draw a three-dimensional graph. Now, these are the two different bricks, ठीक है, जो कि यूज होंगे आपके ग्राफ के डेवलपमेंट में. इसलिए हम दोनों चीज को अलग अलग रख रहे हैं ना, इसलिए जिस चीज की जरूरत है उस चीज को यूज करेंगे. नहीं, आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, बट दैट विल बी अ थ्री डायमेंशनल पॉइंट आइडियली. अब आप कहें कि हम उसका z कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे तो टू डायमेंशन हो जाएगा, मैथमेटिकली दैट इज करेक्ट. दो वेरिएबल, दो फील्ड डिफरेंट, एक फील्ड और ले सकते हैं, राइट, ले सकते हैं, लेकिन फिर ये 2D पॉइंट नहीं रह जाएगा ना, फिर ये 3D पॉइंट बन जाएगा. हम 2D पॉइंट अलग बनाना चाहते हैं, 3D पॉइंट अलग बनाना चाहते हैं. ठीक है. अच्छा, थोड़ी सी मैं एक काम करता हूँ, जरा सा विजन को ज्यादा ब्रॉड करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाता हूँ. गाइस, कुछ चेयर्स रखिए, चेयर्स ले लो आप. एक आदमी इधर आके बैठ जाओ. देखो किसको किसको चेयर मिल पा रही है. एक इधर बैठ जाओ, एक चेयर कमी, एक उधर बैठ जाओ. चलो, आपको मिली चेयर? नहीं मिली? आ जाओ, ये चेयर लो, मैं इधर बढ़ा देता हूँ. लो, ले लो, ले लो. है, चले जाओ उधर. Guys, now listen. I am trying to elaborate the problem statement in advance. ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप एक बड़ी पिक्चर लेकर के फिर आगे बढ़े. अभी मैंने क्या डिफाइन किया है, अ पॉइंट हैज अ टू डायमेंशनल पॉइंट की जो बात करें, जो पॉइंट क्लास बनाई है, हैज टू कोऑर्डिनेट सिस्टम x and y. Guys, please silence. It has two coordinate systems x and y. कल को हमें टू डायमेंशनल लाइन अगर बनानी पड़ेगी तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? दो पॉइंट चाहिए होगा ना, स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, अदरवाइज लाइन इज डिफाइंड एज इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉइंट्स. वी कैन नॉट figure out how to model an infinite series of points, so we will just talk in terms of start point and the end point. So that means a line is composed of 2 points. Make sense? 2 points, start point and the end point. Points itself are composed of two coordinate systems. बात समझ में आ रही? यानी जो हम लाइन क्लास बनाएंगे, तो आप, मैं मॉडल करके हल्का सा आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाज मिल जाएगा. न्यू क्लास, नाउ वी आर टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ टू डायमेंशंस एज ऑफ नाउ. ठीक है, से अ लाइन. ठीक है, now this line is composed of 2 points, private start, private point. This is also a two-dimensional point, right? P capital start point, fine, and sorry, private point, end point. क्लियर हो रही बात, राइट? इसके अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो क्या करेंगे हम?
कंस्ट्रक्टर का नाम लाइन होगा, राइट। आप जैसे कि सेटर और गेटर मेथड जनरेट करते थे वैसे आप कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। वैल्यूज को चेंज करने के लिए, बाद में सेट करने के लिए होता है। मैं कह रहा हूँ मैं भी कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहा हूँ, बट जैसे कि आप गेटर और सेटर मेथड्स को जनरेट कर लेते थे सोर्स में जा करके एक क्लिक पर, वैसे ही आप कंस्ट्रक्टर को भी आप जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट द ऑप्शन जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ठीक है। आप इसको क्लिक करिए, सिलेक्शन के लिए कह रहा है, आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, सोर्स, कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास में बाद में आएंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए। अभी कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स पे हम जा रहे हैं। ये फील्ड दिखा रहा है स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट विच आर अगेन पॉइंट्स। मैंने जनरेट किया, बन गया, फाइन। ओवरलोड कर दें इसको, कैसे ओवरलोड करें भाई? लाइन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों पॉइंट गायब हो, तो नो और कंस्ट्रक्टर का तो कोई मतलब बनेगा नहीं। लाइन के लिए तो स्टार्ट पॉइंट भी चाहिए, एंड पॉइंट भी चाहिए। फिलहाल के लिए हटा दो इसको, जब हम उस पर आएंगे तब हम उसको स्प्रिंट करेंगे, ठीक है। जो अननेसेसरी कोड है मैंने जानबूझ कर लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अपना उसको हटा दीजिए। लाइन की डिफिनेशन में, जैसे पॉइंट की डिफिनेशन में हमने नो और कंस्ट्रक्टर बनाया था गाइस, तो नो और कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या था? पॉइंट ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है, 0 0 हो जा रहा था। लेकिन लाइन के केस में नो और कंस्ट्रक्टर कोई मतलब बनेगा? वन और कंस्ट्रक्टर कोई मतलब बनेगा? एक लाइन के भी दो पॉइंट ही होते हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, वरना वो पॉइंट ही रह जाएगा, राइट। तो नो और कंस्ट्रक्टर या वन और कंस्ट्रक्टर का सेंस लाइन में नहीं बनाता है। तो आप जो भी लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट शुड मेक अ परफेक्ट सेंस, ठीक है। अब इसको ओवरलोड करना है, क्या ओवरलोड करें बताओ, क्या ओवरलोड कर सकते हैं हम? x1 y1 x2 y2, राइट, वो कर सकते हैं हम, राइट। कैसे करें इसको बताओ? पब्लिक नाम क्या रहेगा? लाइन। इंस्टेड ऑफ हैविंग द पॉइंट इंस्टेंसेस as a parameter, we will have the coordinate systems, right? Integer x1 for example, comma integer y1, ठीक है, ये स्टार्ट के हो गए, comma integer x2, comma integer y2, ठीक है। अब क्या करें हम? this dot start point dot set x x1, कैसे सही है? this dot start point dot set y, इसकी जगह क्या करें? y1, सही है। एंड पॉइंट भी करेंगे, जब वो कर रहे थे एंड पॉइंट भी करेंगे। दिस डॉट एंड पॉइंट डॉट सेट x2, फाइन। दिस डॉट एंड पॉइंट डॉट सेट y2, हो गया। अब गेटर सेटर जनरेट करना है, सोर्स जनरेट गेटर सेटर्स, एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट्स, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, ठीक है। एनी डाउट्स गाइस? कोड देख लीजिए ठीक से, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, है कंस्ट्रक्टर में लिख दिया है तो हमें दोबारा सेटल डालने की क्या जरूरत है, ये कह रहे हैं ना आप। आज को आपने लाइन एक जगह पे ड्रॉ कर रखा है, सिलेक्ट करा आपने, उसको मूव करके दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो क्या होगा? उसका स्टार्ट पॉइंट चेंज होगा, एंड पॉइंट चेंज होगा। तो सेटर भी चाहिए ना स्टार्ट पॉइंट के लिए, एंड पॉइंट के लिए, ठीक है।
रीड करना है तो गेटर चाहिए, ठीक है, मेक सेंस। कहाँ से हमने शुरू करा, टू डायमेंशनल पॉइंट से शुरू करा, टू डायमेंशनल लाइन पे आए। अब मैं कहूँ कि अगर टू डायमेंशनल ट्राइंगल मुझे डिफाइन करना है तो ट्राइंगल को कैसे डिफाइन करिएगा आप बताइए। ट्राइंगल, 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 तीन पॉइंट ले सकते हैं या तीन लाइन ले सकते हैं। दो तरीके डिफाइन करने के ट्राइंगल को, या तो तीन लाइन लेंगे या तीन पॉइंट लेंगे, ठीक है। वॉट एवर वी वॉन्ट टू डिफाइन एज पर द एप्लीकेशन वी कैन गो विथ इट, राइट। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक बाई ब्लॉक बाई ब्लॉक। अब तक जो भी हमने किया वो कंपोजिशन से किया। गाइस पीछे बातें ज्यादा हो रही हैं। अभी क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा मैं सबसे, सबको खड़ा करके मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा, ठीक है। तो सुन लो ध्यान से। तो अभी तक जो हमने बात करी, हमने क्या करा, टू डायमेंशनल पॉइंट की बात करी और उसमें कंपोजिशन का रिलेशनशिप से फाइंड करा कि पॉइंट हैज टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। फिर हमने कहा टू डायमेंशनल लाइन की बात करी, लाइन हैज टू पॉइंट्स, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन के अंदर दो पॉइंट के ऑब्जेक्ट आए, उसके अंदर आए, राइट। फिर हम कह रहे हैं ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल में है थ्री लाइंस फॉर एग्जांपल। तो ट्राइंगल क्लास जब आप लिखें क्लास ट्राइंगल, तो उसके अंदर क्या करेंगे, लाइन वन, लाइन, लाइन वन, लाइन, लाइन टू, लाइन, लाइन थ्री, तीन से कंपोज होगा। तो ट्राइंगल विल बी कंपोज ऑफ थ्री लाइन फॉर एग्जाम्पल, or it could be composed of 3 points also. So that depends what definition we want to go with depending upon our application. ठीक है। तो अभी हमने देखा, अभी जो भी बातें हम कर रहे हैं वो कंपोजिशन के टर्म में ही बात कर रहे हैं। लाइन इज कंपोज, ट्राइंगल इज कंपोज ऑफ लाइंस, लाइंस इज कंपोज ऑफ 2D पॉइंट्स एंड एवरीथिंग इज टू डायमेंशनल, ठीक है। अब हम डायमेंशंस को सेपरेट करते हैं, एक डायमेंशन 2D डायमेंशन की बात कर रहे थे, अब हम बात करें 3 डायमेंशन की, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब तक हमने पॉइंट जो बनाया वो 2 डायमेंशनल पॉइंट बनाया। Now we do not want to touch this definition that we have already given, and the whole system which is being built upon two-dimensional point. We do not want to disturb that. We want to keep that aside. Now we want to create a separate line of existence for a three-dimensional point that will may change to a three-dimensional line. ठीक है, on top of it. Then we can build a three-dimensional triangle on top of it, and so on. बना सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, टू डायमेंशनल पॉइंट को अलग रख रहे हैं, थ्री डायमेंशनल पॉइंट को अलग रख रहे हैं। ये हमारा पर्पस है। तो अब थ्री डायमेंशनल पॉइंट को बनाने के लिए हमने एक नई क्लास बना दी, पॉइंट 3D, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम कहें इंट एक्स, अच्छा प्राइवेट कर दें। प्राइवेट क्यों हम बार बार कर रहे हैं, हाँ, डाटा हेडिंग के लिए, डाटा हिडन रहे, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन। मेथड्स जो होंगे जो इनको एक्सेस करेंगे वो पब्लिक रहेंगे, ठीक है। डाटा हेडिंग का फायदा क्या है ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, प्रैक्टिकल फायदा, ठीक है। अगर कोई मेरे डिस्कस करने से पहले बता दे तो उसको बोनस पॉइंट। सिक्योरिटी है हवा में नहीं, सिक्योरिटी डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना पड़ेगा। ये यूजर से मतलब नहीं है, यूजर तो आपके आपके स्क्रीन पे क्या देखता है, वो तो फॉर्म देखता है ना, कैसे एडजस्ट करेगा वो, ये तो कोडर की बात है ना। अगर हम कह रहे हैं कि डाटा को हम प्राइवेट कर रहे हैं तो उस क्लास के बाहर नहीं दिखेगा, इसका मतलब डेवलपर जो है उस क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ डेवलपर है, ये यूजर से नहीं है, हैकर के टर्म में सोचिए इसको। सिक्योरिटी ये है कि गलती से किसी प्राइवेट वेरिएबल को वो चेंज न कर पाए। फाइनल इज कांस्टेंट, इट्स नॉट अ वेरिएबल, फाइनल इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अभी प्राइवेट का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी हम इस कोड इस डाटा को अगर हम चेंज करना चाहेंगे एक्स वाई जेड के अंदर जो भी है, तो उसके अंदर उसके लिए जो कोड हमें लिखना पड़ेगा वो इस क्लास के अंदर ही लिखना पड़ेगा। इस क्लास के बाहर अगर मैं ही खुद क्लास कोड लिख रहा हूँ तो वो क्या दिखाएगा, मुझे एरर दिखाएगा कि तुम्हें यहाँ विजिबिलिटी नहीं है इस वेरिएबल्स की। तो एक्सीडेंटली मैं कोड लिख करके उसको करप्ट ना कर पाऊँ उसकी वैल्यू को, ये सिक्योरिटी का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब वो सिक्योरिटी नहीं है। नहीं नहीं, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो भूल जाओ उस चीज को एक बार।
एक बार जो वो वाली सिक्योरिटी होती है उसको भूल जाओ। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि यहाँ सिक्योरिटी का मतलब जो होता है डाटा हेडिंग के थ्रू मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वेरिएबल एक्स और वाई प्राइवेट है तो इसमें कोई भी मेथड हमें इस क्लास के अंदर ही लिखना पड़ेगा, वही एक्सेस कर पाएगा। इस क्लास के बाहर एक्सेस होने से सिक्योर्ड है। एक्सेस होने से मतलब डेवलपर के एक्सेस होने से। डेवलपर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके उस जैसे अच्छा तुम देख ही लो फिर पॉइंट 2D बनाया हमने, एक्स वाई उसके क्या है प्राइवेट है। अब अगर मैं पॉइंट P1 मैंने बना रखा है तो मैं अगर कहूँ P1 डॉट एक्स, क्या वो मुझे दिखेगा? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, प्राइवेट है, ये दिख रहा है। ये इस क्लास के एसेस के लिए से सिक्योर्ड है, यानी दूसरे पार्ट ऑफ द कोड के एसेस से सिक्योर्ड है। ये बात समझ में आई? ये डेवलपर के लिए है, ये वो सिक्योरिटी का कंसेप्ट नहीं है। हमारी विजिबिलिटी जो है अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई उसी क्लास के अंदर, लेकिन हाँ उसको मैं चेंज करना चाहूंगा तो मुझे इस मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा। ना मेथड इज अ काइंड ऑफ अ रैपर जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और हमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाना होता है तो मेथड हमारे पास हमेशा रहेगा जिसमें हम वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, आइंदा कभी उसका यूज भी देख लेंगे हम। ठीक है, अभी फिलहाल मैं उतने डिप में नहीं जा रहा हूँ उसकी, चूंकि सारी बातें थोड़ा आगे बढ़ना है, कोर्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो डाटा हेडिंग का वो मतलब है, और वहाँ जो डाटा हेडिंग में सिक्योरिटी टर्म यूज करते हैं, सिक्योरिटी का मतलब इधर ये वाली सिक्योरिटी है कि करप्ट डेवलपर ना कर दे गलती से। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जस्ट सेकंड का है। ठीक है guys? क्लियर है इतना? तो अब हम कहाँ पहुंचे थे? हम कहानी हमारी ये पहुंची थी कि हम चाहते हैं कि जिस तरह टू डायमेंशनल पे हम टू डायमेंशनल पॉइंट को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज करके हम एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाह रहे थे, वैसे थ्री डायमेंशनल पॉइंट को यूज करके एक सेपरेट लाइन में एप्लीकेशन को हम बिल्ड कर पाए। ठीक है, तो अगर हम इस तरह करते कोड प्राइवेट इंट एक्स, प्राइवेट इंट वाई एंड प्राइवेट प्राइवेट इंट जेड, राइट? फिर इसका कंस्ट्रक्टर बनाए, गेटर सेटर बनाए, ये सब कर सकते हैं हम। ठीक है ना, ये कर सकते हैं। लेकिन क्या हम पॉइंट 2D के को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? ऑलरेडी पॉइंट 2D में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड है, तो हम यहाँ पे एक्स वाई को हम डिक्लेयर ना करें, हम उसको इनहेरिट कर ले, यानी उठा लाए कहाँ से? पॉइंट क्लास से, विच इज अ 2D पॉइंट, राइट? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स पॉइंट, एक्सटेंड्स पॉइंट। ठीक है, सी प्लस प्लस में आप कॉलन यूज करते थे, इनहेरिट कर रहे हैं। सर पर वो तो प्राइवेट वेरिएबल्स है तो फिर इनहेरिट में आ जाते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स क्लास में। अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि भाई पॉइंट क्लास में जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट हैं, तो क्या वो इनहेरिट करके आ जाएंगे? अभी हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ कि वॉट एवर इज विजिबल इन द पॉइंट क्लास दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द पॉइंट 3D क्लास। Keep focusing on the term. Whatever is visible in the point class that becomes a part of the point 3D class. Even though x and y coordinates are not visible in the point 3D class because it's an external class, but the getter and the setter methods are visible. उसके थ्रू तो मैसेज कर ही सकते हैं ना। एक्सटेंड होने से कंफ्यूजन है। सी में आपके सी प्लस क्या करते थे? कॉलन लगाते थे ना। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट 3D इज एन एक्सटेंशन टू द पॉइंट क्लास। ठीक है, एक्सटेंशन कहने का मतलब क्या है, उस पर अभी 1 मिनट में आते हैं। ठीक है, फिलहाल समझो कि पॉइंट क्लास का जो कुछ पार्ट है, जो कुछ है, वो पॉइंट 3D का हिस्सा भी बन गया।
यानी एक्स वाई और उससे रिलेटेड मेथड जो थे वो किसी न किसी तरह से हमें यहाँ भी एक्सेसिबल होंगे, किसी न किसी तरीके से। ओवरराइडिंग पे भी आते हैं, ओवरराइडिंग अलग कंसेप्ट है। बता रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ देखो, लेट मी गो टू टेस्ट पॉइंट क्लास। पॉइंट थ्री डी हमने कुछ नहीं करा, सिंपली प्रिंट प्राइवेट इंटीजर सेट कर दिया, एक डायमेंशन बढ़ा दिया, और हम कह रहे हैं पॉइंट थ्री डी में वो सब कुछ मिल जाएगा जो पॉइंट क्लास में ऑलरेडी है, प्लस जेड अलग से ऐड कर दिया। यानी पॉइंट क्लास में एक्स वाई है, जेड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। टेस्ट पॉइंट में चले जाइए, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब की बार हम पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे बल्कि पॉइंट थ्री डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, पी थ्री डी, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू स्पेस पॉइंट थ्री डी। फाइन। अब अगर हम कहें P3D डॉट, अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, गेट एक्स गेट वाई मिल रहा है, सेट एक्स सेट वाई मिल रहा है, प्रिंट पॉइंट मिल रहा है जो एक्स वाई प्रिंट को प्रिंट करता था, पॉइंट क्लास के अंदर का प्रिंट पॉइंट मेथड। अभी हमने 3D पॉइंट के लिए प्रिंट पॉइंट मेथड नहीं डिक्लेयर करा है, जो पब्लिक है सब चीज मिल रहे हैं, सारे पब्लिक मिल रहे हैं। जेड का अभी हमने कुछ डिक्लेयर ही नहीं करा है, क्योंकि पॉइंट थ्री डी क्लास में जो जेड वेरिएबल डिक्लेयर करा है वो प्राइवेट है, तो यहाँ पे वो विजिबल नहीं है। हाँ, हमने सेटअप मेथड अभी तक डिक्लेयर नहीं करा है, तो हम उसका सेटअप मेथड बना लें। सोर्स में जनरेट गेटर एंड सेटर्स। अभी देखिए जनरेट हम करने की कोशिश करें गेटर सेटर, तो क्या ये एक्स वाई दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है, एक्स वाई का ऑलरेडी पॉइंट में है, वो इनहेरिट होके आ गया, इसका हिस्सा बन गया है। जब इसका हिस्सा बन गया है तो हमें जनरेट दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली कह रहे हैं कि जेड को हमने जनरेट कर लिया, राइट। जेड के लिए गेटर सेटर आपके बन गए। अब देखो यहाँ पे आपको अब तीनों चीजें दिख जाएंगी, एक्स वाई जेड, गेट एक्स वाई जेड, और सिमिलरली सेट एक्स सेट वाई एंड सेट जेड, तीनों मिल गया। नाउ वी कैन सेफली से दैट point 3D is a point. Point 3D is a point, is a relationship. ठीक है, ठीक है, is a point. Point has x and y coordinates. Point 3D has x, y and z coordinate. यहाँ भी हैज आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो हैजा कैसे आ रहा है, एक्स वाई इनहेरिट होके आ रहा है। और जो हम सेंटेंस यूज करेंगे वो यूज करेंगे पॉइंट 3D इज अ पॉइंट, इनहेरिट कर रहा है। सेंस बन रही है ना भाई, पॉइंट 3D इज अ पॉइंट, सेंटेंस बोलने में आपको सेंस बन रहा है, राइट। अभी जितने डेप्थ में हम एक दो क्लास में और जाएंगे ना, आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और ये चीजें ऐसी हैं कि अगर अगर ना क्लियर करिए तो 2-3 साल तक क्लियर नहीं होती है, जॉब पे जाने के बाद भी लोग उसमें लड़ते मतलब परेशान रहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, ठीक है। तो कंपोजिशन का मतलब समझ में आ गया, हैज रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, इज रिलेशनशिप। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि पॉइंट क्लास, पॉइंट 3D क्लास इज अ पॉइंट क्लास, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट तो बेटा यहाँ क्रिएट कर रहे हैं हम, और रन टाइम पे क्रिएट होगा, यहाँ सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। लिखते ऐसे पूरा करते ऐसे। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले रहा है उसके बाद मुझे चेंज करना पड़ रहा है दिखाने के लिए। तो पॉइंट 3D एक्सटेंड्स द पॉइंट क्लास, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट 3D इनहेरिट्स एवरीथिंग विच द पॉइंट हैज, and why we say it extends. We also say that point 3D is an not is a point, not just is a point, is also an extension to the point. Why? Because there is something extra in point 3D which is an extension. ये variable भी और ये methods भी, these are the extensions to the point class, ठीक है।
तो इसीलिए जावा ने कॉलम यूज करने के बजाय जहाँ सिर्फ इनहेरिटेंस की फीलिंग आती थी, उसने कीवर्ड जो यूज करा वो कीवर्ड ही यूज कर लिया एस्टेंट्स के नाम से, कि आप ये समझ पाए कि न सिर्फ ये इनहेरिटेंस है, बल्कि इनहेरिटेंस के साथ जो कुछ आ रहा है हमारे पास, जो कुछ आ रहा है वो इनहेरिटेंस है, प्लस हम उसमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्सटेंशन। ठीक है, तो जावा ने इसको मोर वर्बोज बना दिया एक तरह से। वहाँ कॉलन यूज करते थे आप, कॉलन यूज करते थे, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन के लिए डबल कॉलन यूज करते थे, एक कॉलन आता था। गाइस क्लियर है यहाँ तक? अभी क्लास है क्या? क्लास है या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो इसलिए बोल रहे हो? रुके यहाँ पर।